कैसे सिलेक्शन नमस्कार प्राप्त करके स्टेट लेवल तक गई थी और वहाँ पे मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। जिसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे बिहार की तरफ से तीसरे member from the Department of Biotechnology, and I have the privilege of being your host for today's event. Respected dignitaries, esteemed guests, respected principal sir, faculty member, dear students and all participants. It is an honor and privilege to welcome you all to this prestigious Viksit Bharat State Level Youth Parliament competition organized by Sardar Vallabhbhai Patel College, Bhabua, under the aegis of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. This grand event aims to inspire young minds and provide them with a platform to voice their thoughts. So, one of the most crucial topic of our time, one nation, one election. The Youth Parliament is not just a competition, it is a celebration of democracy, leadership and critical thinking. It gives the youth an opportunity to express their perspective on national and take a step toward becoming a responsible citizen of tomorrow. Dear participants, today is your chance to be the voice of change. The discussion on the One Nation, One Election is a subject of national importance, and your views will shape the future of democratic reform in our country. So let's make this event meaningful. With that, let's begin this enlightening journey of democracy, leadership and nation building. To begin this auspicious event, let's invoke the blessing of the Almighty. A single lamp can light 1,000 more without diminishing its own brightness. We now invite our esteemed dignitaries to talk. हो गया इधर से आज कर रहे Thank you, respected guests. इतना वर दीजिए, निर्मल हो मन अधम, निर्मल हो मन अधम, मीठा स्वर दीजिए, माता वरदायिनी, इतना वर दीजिए, माता
student of our college to lead us singing the Kulgit. Please, student, come forward. जले अमृत ज्योति जले जय जय हे अमृत ज्योति जले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शास्त्र शास्त्र विज्ञान विज्ञान में जनगण के जीवन पथ के तू जनगण के जीवन पथ के तू सृजनहार मिले जय जय हे अमृत ज्योति जले अमृत ज्योति जले जय जय हे अमृत ज्योति जले विश्वामित्र की तपी भूमि पर विश्वामित्र की तपी भूमि पर नवल सृष्टि का संघनाद कर गंगा सोनभद्र संगम पर गंगा सोनभद्र संगम पर शिव सुंदर निकले जय जय हे अमृत ज्योति जले अमृत ज्योति जले जय जय हे अमृत ज्योति जले रोहतास कैमूर सुहावन रोहतास कैमूर सुहावन भोजपुर बक्सर अदित पावन शस्य श्यामला धरती जगमग शस्य श्यामला धरती जगमग सतत मिश्र गले जय जय हे अमृत ज्योति जले अमृत ज्योति जले जय जय हे अमृत ज्योति जले And an inspiring figure whose vision and dedication have significantly contributed to the academic and intellectual growth of our region. It is with great pride and immense respect that we welcome our chief guest, Sri Akshay Kumar Pandey sir, the District Education Officer of Kaimur Bhagwan. Pandey sir is not just an administrator but a guiding force in the field of education, ensuring quality learning, innovation and empowerment of students and teachers alike. His commitment to academic excellence and holistic development has made a profound impact on shaping the future of countless young minds. Sir, your presence here today is an inspiration to all of us, especially the young visionaries participating in this event. Now, to honor our esteemed chief guest, I would like to request our principal sir to present a token of appreciation as a mark of our gratitude and respect. Please give a big round of applause. Please give him big round of applause. Good, sir. Oh. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your presence. Introduce and honor and respected jury member whose guests grace this event with their presence. A teacher is like a candle that consumes itself to light the way for others. It is an absolute honor to welcome our distinguished
scholar and academician, Professor Ramanand Singh sir, a ex-professor from the Department of Hindi, Veer Kumar Singh University of Ara, Bihar, with a remarkable career dedicated to literature and education. Professor Ramanand Singh sir has played a pivotal role in shaping young minds through his vast knowledge. Sir, your presence here today a privilege for all of us, especially for those who seek wisdom and knowledge in the world of literature. To express our heartfelt respect and gratitude, sir, I would kindly request to Dr. Akhilendranath sir to do this honor. Please, sir, give him a big round of applause. Please give him a big round of applause. I would kindly request to Dr. Bhupendra Shukla sir, Department of Philosophy, to do the honor. Please, sir, give him a big round of applause. Look at the sir. Okay. Thank you, sir, for gracing us. The legal field, Upadhyay sir has been a strong advocate for justice and legal aid. I would like to invite Dr. Anand Prakash sir, head of the Department of Zoology, to present a token of our heartfelt gratitude to sir. Please give him a big round of applause. Sir. Sir. Society with unwavering commitment. Sir, your presence here today is an honor for all of us. Your journey as a protector of law and justice is truly inspiring, especially for the youth who aspire to serve the nation. To express our deep respect and appreciation, we now take this moment to honor Pandey sir. I would like to invite Dr. Vansidhar Upadhyay sir to do the honor. Please, sir, give him a big round of applause. Sir. Law and order. Sir has been a symbol of courage, integrity and order. Sir has been his year of service in the police force have been marked by his commitment to ensuring public safety, upholding the law and setting an example of true leadership. To express our deep gratitude and respect, we present a token of appreciation to sir. We kindly request to Dr. Niyaz Ahmed Siddiqui sir, Department of Psychology, to present a token of appreciation. Please give him a big round of applause. Sir. Sir, look at the camera. Okay, sir. Thank you, sir. Invite Dr. Mahesh Prasad sir, Department of Economics. Please do the honor, sir. Please give him a big round of applause.
Sir, look at the camera. Okay, sir. Okay, sir. Give a big round of applause. Sir, look at the camera. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sincere gratitude and appreciation, we take this moment to honor to you, sir. May I now NSS officer. Now I would like to invite Dr. Annapurna Gupta ma'am to enlighten us about this wonderful initiative. Please ma'am. Please give him a big round of applause. राष्ट्रीय युवा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत युवा संसद 2025 का सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ में केंद्र बनाया गया है। पूरे देश में जितने भी जिले हैं 790 के आसपास, उसमें से 300 कॉलेज को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सेंटर हैं इस प्रोग्राम के लिए, और हर एक कॉलेज को 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा गया है और पूरे देश को इस प्रोग्राम में एक साथ कवर किया गया है। इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत सरकार हमारे युवाओं के विचार जानना चाहती है, उनमें कुछ कुशलताएं विकसित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि देश के विकास में वो निर्णय ले सकें और उनके विचार विमर्श करने की शक्ति पैदा हो सके, निर्णय लेने की शक्ति हो सके, देश के कुछ विशेष जो नीतियां हैं उसमें उनका योगदान रहे और उनके स्टेक होल्डर्स और जो भी पॉलिसी मेकर हैं वो उसको विचारों को जान करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देश में युवाओं की सहभागिता के लिए विशेषता ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि युवाओं में दूसरे के विचारों को सुनने समझने, विचार विमर्श करने की सहनशीलता, सहिष्णुता डेवलप हो सके, उनमें लीडरशिप डेवलप हो सके, वो देश के विकास में अपना आगे आ सके। तो ये बहुत ही सुंदर प्रयास है भारत सरकार का, युवाओं को पूरी तरीके से सीधे तौर पर उनके विचारों को जानने और उसको इम्प्लीमेंट, पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 150 पार्टिसिपेंट्स को हमने इस कार्यक्रम में चुना है। उसका तरीका था वीडियो अपलोड करके माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ 150 में से 75 पार्टिसिपेंट्स जो कैमूर जिले के हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, जो कि आज का टॉपिक है प्रतियोगिता का एक राष्ट्र एक चुनाव। उस पर अपना 3 मिनट का ही सिर्फ आपको भाषण प्रस्तुत, स्पीच कंपटीशन है, ये भाषण देना होगा और उसमें से जो सबसे बेस्ट होंगे, भारत सरकार की तरफ से निर्णायक मंडल आया हुआ है सब जाने, तो उसमें क्राइटेरिया 6 पॉइंट्स का दिया हुआ है, जिसमें कि उनको स्कोरिंग के द्वारा 10 प्रतिभागियों को इसमें से चुना जाएगा जो सीधे राज्य स्तरीय लेवल स्तरीय पर जाएंगे स्तर पर, वहां से वो 10 बच्चे विधानसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए है कि वो देश के विकास के योगदान में, सीधे तौर पर योगदान में शामिल हो। तो इस प्रोग्राम की रूपरेखा यही है और आगे के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। लेक्चरर और जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको अवसर दिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा लगा, हमको भी थोड़ा समय का अभाव है, अन्यथा इसमें पूरे होल टाइम हम ठहरते, देखते भी क्या क्या बच्चों में भी क्या डेवलपमेंट हुआ है।
बहुत कम समय में 1-2 शब्द ही बोल पा रहे हैं। हमको कहना है ये कि ग्लोबलाइजेशन के बाद 90 के दशक के बाद में काफ़ी बदलाव आया विश्व परिदृश्य में। इतना बदलाव आया, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पर हो, लीडरशिप के लेवल पर हो, चाहे हर एक साइंस के लेवल पर हो, हर एक क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया। इस ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट में हमारी चुनौती और हमारा जो संसाधन है दोनों में विकास हुआ। एक तरफ संसाधन में विकास हुआ कि जो भी टेक्नोलॉजी विश्व स्तर पर किसी अन्य देश में है वो हमको भी प्राप्त हुआ। चुनौती हुआ कि वैसे पूरे वैश्विक स्तर पर हमारे स्टूडेंट को, हमारी अगली पीढ़ी को उनका सामना करना है। विश्व में जितना भी विकास हो रहा है, इसके जो अंतर्गत जो कई बदलाव हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कन्वर्जेंस का। एक मोबाइल का हम लोग एक यंत्र रखते हैं अपने साथ में, उसमें एक ही साथ हम बात भी करते हैं, चित्र भी देखते हैं, दूसरे जगह से वीडियो कॉलिंग, मतलब विभिन्न प्रकार की विधाएं एक यंत्र में शामिल जैसे किया गया है। इसका नाम तकनीकी भाषा में कन्वर्जेंस दिया गया। उसी प्रकार का अभी हमको मानव के रूप में विकास करना है। मानव के रूप में विकास का मतलब है कि एक होल मैन कंसेप्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति जो एक साथ धरातल को भी नहीं छोड़े और आसमान को भी छू दे। ये बात सभी जो अपने नई पीढ़ी के स्टूडेंट हैं, इनके लिए हम ये बात समझाना चाहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। हमको अपने धरातल की बात को भी समझना है। कृषि में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और एक साथ हमारा स्पेस तकनीकी कहाँ जा रहा है, स्पेस में कितना हम आगे विकसित हो रहे हैं। GSLV, PSLV या फिर जो हमारे पास में जितना भी लॉन्चिंग व्हीकल हो या फिर मिसाइल तकनीकी हो, सभी पर एक साथ हमको काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको जो विकास, आपके अंदर जो एक डेवलपमेंट कराया जा रहा है हमारे शैक्षणिक संस्थान द्वारा, ताकि एक व्यक्ति में डॉक्टर का भी गुण हो, लीडरशिप भी हो, एक अच्छे विद्वान भी हो, एक पढ़ाने की भी कला हो, एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें सभी प्रकार का गुण एक साथ भर दिया जाए, तभी ही हम उस ग्लोबल चुनौती का सामना कर पाएंगे, एक साथ विकसित हो जाएंगे। अभी भी हम लोग खेल के क्षेत्र में भी देखते हैं तो हमारा ग्राफ जितना होना चाहिए, उस जितना आबादी है उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस नहीं है। हमको एकदम टॉप पर होना चाहिए था आबादी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास युवा बल बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो होना चाहिए हमारा तकनीकी था कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विद्वान बन गए, PhD किए, बहुत बड़ा डिग्री हासिल किए, एक विषय का स्पेशलाइजेशन हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इससे काम नहीं चलेगा। इसी का एक पार्ट है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, समय का अभाव है, बहुत विद्वान जन बैठे हैं, बहुत कुछ बात समझाएंगे भी, लेकिन हमारा जो भी डिमांड है उसमें से एक पार्ट है कि पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप हो जाए। वो अपने धरातल के जन से जुड़ करके, एक गांव के लोगों से भी जुड़ करके, जो गांव की समस्या है, जो उनका अधिकार है और जो उनका कर्तव्य है, इस दोनों का बोध उनके पास में हो। ऐसा स्टूडेंट पीरियड से ही उनके अंतर्गत भावना को हम विकास करें, वो ताकि अपने समय पर जा करके एक अच्छे लीडर के रूप में जब डेवलप करेंगे तो उनके पास सारी सूझबूझ होगी। जो विकेंद्रीकरण का जो हमारा कंसेप्ट आया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, गांव को भी इसमें जोड़ने के लिए, गांव को भी एक पार्टिसिपेट कराया जा रहा है अपने राजनीति से, अपने जो भी डेवलपमेंट का पार्ट से, उसी का पार्ट है कि आज आप लोग को इस भावना से जोड़ा जा रहा है। हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस भावना को अच्छी तरह से समझ करके और आप में उतारने का प्रयास कर रही हैं। अगर एक बच्चा भी इसमें सफल होता है तो हमारा मिशन सफल होगा और हमको उम्मीद है सभी के सभी बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे, हमारा जिला का नाम रोशन होगा, वहाँ जाएंगे विधानसभा में, हो सकता है कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करें। बहुत सारी शुभकामना सभी बच्चों के लिए, धन्यवाद। इसकी पृष्ठभूमि हम बता देते हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं थी। 3 या 4 मार्च को हमारे NSS कोऑर्डिनेटर पाधमा रावत जी हैं, बोले कि
आपका लिंक भेज दिया गया है। गूगल मीट पर आप जुड़ जाइए तुरंत। और यहाँ पर जो है एनएसएस के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं गिरधर उपाध्याय जी, वो भी रहेंगे। तो हम जुड़े तो उससे देखें कि एसपी कॉलेज आरा के भी प्रिंसिपल उस पर मौजूद हैं। बोले कि भारत माई पोर्टल है, उस पर आप लॉगिन करके देख लीजिए। आपका कॉलेज जो है से युवा संसद कार्यक्रम चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है। मैंने कहा कि इसके लिए तो मेरे पास कुछ ऐसा कोई आवेदन वगैरह नहीं आया है और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो कहा कि आपके कॉलेज का जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर है तो इसको अगेंस्ट में कहे कि मैं नहीं करा पाऊंगा, इसलिए हमको रिफ्यूजल लेटर भेज दिए थे। तो इस रिफ्यूजल लेटर के उपरांत भी आपका कॉलेज का चयन हुआ है। तो हम कहा कि इसका कोई आधार है क्या, इसका कोई आधार है क्या चयन करने का? तो आधार है, उसको अगर हम मुख्य करके भी भेजेंगे कि कॉलेज को कार्यक्रम चलाने के लिए अधिकृत किया जाएगा तो कर देगा का सेंट्रल गवर्नमेंट? वहाँ का पूरा देखता है, वहाँ के एक्टिविटीज का देखता है कल महाविद्यालय का। तो क्या यह चुनौती को आप रिफ्यूज भी नहीं कर सकते? आपको करवाना ही है, करवाना भी है तो 12 मार्च तक करवा लेना है। हम कहा कि 12 मार्च तक तो असंभव, इम्पॉसिबल, क्योंकि 8-9 तारीख तक 10 तारीख तक तो क्या बोलता है हमारा जो है सिविलुएशन इंटरमीडिएट का चल रहा है, मैं नहीं करा पाऊंगा। तो कब कराइएगा? हम कहा कि 17 तारीख के कॉलेज खुल रही है होली वेकेशन के बाद, 18 तक संभव नहीं है, 19-20 को मैं। तो अब हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय जो है से महोदया जो है से एकदम हड़बड़ा गई। हम कहा कि ये तो अब चुनौती है तो इसको अब करवाना ही पड़ेगा। करोलिया जी हैं नेहरू युवा केंद्र के नोडल पदाधिकारी, इनको भी इसमें सहयोग करना है। अब पूरा फिनेंशियल पावर इन्हीं का है, हम लोगों को खाली श्रम करना है। अब करोलिया जी चाहेंगे तो प्रोग्राम जो है फिर चकाचक होगा। अभी करोलिया जी के जो फाइनेंशियल पावर सब इनका है, तब खर्च